صلح کیسے کریں جب ہمیں جانتے ہیں وہ سامنے آ نہیں رہے، ہم صلح کیسے کر لیں؟ سامنے کیوں نہیں آ رہے وہ 2 مہینے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شاہد ثقلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج 13 اپریل ہے، جمعرات کا دن ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر ہم بات کریں گے مغوی ہزارہ کیس کے حوالے سے، علی کاظمی کے حوالے سے، ظہیر کے حوالے سے، اور آپ کو ایک بار پھر بتاؤں گا کہ کس طرح علی کاظمی کی ہمت نے، علی کاظمی کے حوصلے نے اور علی کاظمی کے ڈٹ کے کھڑے رہنے نے ایک اور بچی کی جان بچا لی ہے۔ ایک اور شخص جو ظہیر کے نقش قدم پہ چل رہا تھا، اس کو آج عدالت سے منہ کی کھانی پڑی ہے، اور آج پہلا وہ کام ہو گیا ہے جس سے یہ معاملہ اب آگے انشاءاللہ بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کو پہلے دن سے ہم بتا رہے ہیں کہ جب سے ہم یہ کیس رپورٹ کر رہے ہیں مغوی ہزارہ والا اسپیشلی، تو ہمارا مقصد وہی ہے کہ جی اگر کسی کی بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زارا کا والد کھڑا ہوا ہے تو اگر زارا کو وہ بچا لے گا تو کل کو کئی زارا جو ہے وہ اس معاملے سے بچ جائیں گی، اور یہ کیس آپ کو پتہ ہے جو عدالتی معاملات ہوتے ہیں وہ مثال بن جاتے ہیں اور اگلے کیسز میں ان کے حوالے دیے جاتے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کوشش یہی ہے کہ ایک بچی کے ساتھ تو ہو گیا، اللہ کرے کسی اور بچی کے ساتھ نہ ہو، اگر کسی اور بچی کے ساتھ ہونے لگے تو اسے بچا لیا جائے۔ اس معاملے میں پڑھنے کا، اس پہ احتجاج کرنے کا، اس پہ بار بار ویڈیوز کرنے کا، علی کاظمی کو اپریشیٹ کرنے کا، اور ظہیر کے حوالے سے جو ہے اس کے موقف کی مذمت کرنے کی جو ہماری پہلے دن سے جو وہ ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال جی، ایک کیس جو میں نے پچھلے دن رپورٹ کیا تھا، شاہد بھائی وغیرہ جو کراچی میں موجود ہیں وہ اس کو کنٹینیوسلی رپورٹ بھی کر رہے ہیں، حبیبہ کا کیس ہے۔ یہ بچی بھی 13 سال کی، والدین کے مطابق جو والدین کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں ان کے مطابق بچی کی عمر 13 سال، اسی طرح لوڈو گیم کے ذریعے اس کو بہلایا پھسلایا گیا۔ اس بار جو ہے وہ شخص ظہیر نہیں عبداللہ تھا، اور عبداللہ کا تعلق راول پنڈی سے، یہ میرے بالکل اسلام آباد کے ساتھ جو ہے راول پنڈی یہاں سے تھا۔ لوڈو گیم کے ذریعے بہلایا پھسلایا، بچی کو لے آئے، آ کے نکاح کر لیا، نکاح کے اوپر عمر 17 سال، بیان میں عمر 18 سال، وہی معاملات جو زارا کے کیس میں نظر آئے۔ تقریباً سٹوری آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی سنائی تھی، بالکل وہی لگتا ہے کہ یہ کیس ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اب تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی، آپ کو، مجھے، ہم کو تو سمجھ آتی ہے کہ یہ معاملہ، یہ کئی زارائیں جو ہے وہ اس طرح اس کا نشانہ بن سکتی ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ظہیر کو سپورٹ کرنے والے مجھے لگتا ہے کہ آج پھر ایک بار پھر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح عبداللہ کو لے آئیں، سپورٹ کریں، اپنے ساتھ بٹھائیں اور کہیں کہ جی تم نے ٹھیک کیا تھا، اور حبیبہ جو ہے ظہیر اس عبداللہ کو ملنی چاہیے۔ بالکل وہی مجھے لگ رہا ہے، شاید ہو سکتا ہے آج کل میں انٹرویو ہو جائے اور معاملات اسی طرف چل پڑیں۔ بہرحال جی، ہمارا یہ موقف ہے کہ علی کاظمی کی بچی کے ساتھ، حبیبہ کے والد کی بچی، حبیبہ کے والد کے ساتھ، یا جس طرح علی کاظمی کے ساتھ ہوا ہے، اللہ کرے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ ہم خود والدین ہیں، اور بیٹی نہیں ہے لیکن سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹی والیوں کا کیا درد ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کی بچی کے ساتھ یہ ہو۔ تو اس لیے آج جی وہ بچی جس کا کیس میں نے 2 دن پہلے اس کے اوپر پہلی ویڈیو کی تھی، وہ باقاعدہ طور پہ پولیس نے اس بچی کو عدالتی حکم کے اوپر راول پنڈی سے بازیاب کرا کے آج جو ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی صاحب کی عدالت میں اس کو پیش کیا تھا، اور بچی جو ہے اس نے وہی، آپ کو میں ویڈیو دکھا دیتا ہوں، پہلے آپ ویڈیو دیکھیں پھر عدالت میں کیا ہوا، کیا کاروائی ہوئی۔ عدالت نے بہت زبردست فیصلہ دے دیا ہے، اور آگے جو ہے معاملہ انشاءاللہ بہت بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، زارا والے کیس کی طرف ہی، باقی آگے دیکھیں گے۔ لیکن جب پولیس بچی کو عدالت لائی تو بچی باہر کیا کہہ رہی ہے اپنے والدین کو بھی اور ہمارے صحافی دوستوں کو بھی، پہلے آپ یہ دیکھ لیں، پھر آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا۔ بیٹا آپ کچھ بات کریں گی؟ یہ آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے اغوا کا مقدمہ درج کیا، آپ بتائیں معاملہ ہے کیا، ایسے کیسے رابطہ ہوا؟ اغوا نہیں کیا، میری مما ایک بزرگ انسان سے میری شادی کرا رہی تھی، تب میں مجبور ہو کے بغیر نکاح کے اس سے مجھے ملوانے لگی رہتی تھی، ذاتی کرواتی تھی، پھر میں کہیں جا کے بھاگی وہاں سے، اور میں خود۔ آپ نے دیکھ لیا، کیا نظر آیا نا، ایسے لگا نا جیسے وہی زارا وہی آئی، میں نے اپنی مرضی سے شادی کی، اپنے خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میرے والدین خاوند سے صلح کر لیں، جو ہے مجھے کوئی اغوا نہیں کیا گیا، میں بالکل اپنی مرضی سے گئی ہوں، میری ماں جو ہے وہ شادی کرنا چاہتی تھی ایک بزرگ کے ساتھ، بالکل سکرپٹ وہی ہے، بالکل، مطلب اتنا بھی فرق نہیں ہے۔ اچھا، اور مطلب ٹھیک ہے، زارا نے کہہ دیا تھا کہ کوئی مجھے مل گیا تھا ٹیکسی والا جو مجھے لے کے گیا تھا، اور اس نے پیسے بھی نہیں دیے اور ظہیر نے اس کو پیسے دیے وہاں پہ۔ یہ بچی کہہ رہی ہے مجھے ایک شخص مل گیا، ٹکٹ کے میں پیسے گھر سے لائی تھی 5000، ٹکٹ اس نے مجھے لے کے دی، میں ریل گاڑی میں بیٹھی اور پہنچ کے راول پنڈی۔
थोड़ा सा यहाँ स्क्रिप्ट का फ़र्क है, बाकी स्क्रिप्ट एक ही है, अपनी मर्ज़ी से गई, मेरे वालिदैन सुलह कर लें, ये है, वो है, नहीं रहना चाहती वालिदैन के साथ, नहीं। ये सारा मामला, अफ़सोसनाक मामला, ये वही चल रहा है भाई। और मैं यकीन करें, बस वो रमज़ान भी है, टाइम भी नहीं है, ये रिपोर्ट्स आई हैं, मैं आज भी देख रहा था कि सिंध से स्पेशली जो बच्चियों को अगवा करके पंजाब और केपी ले जाया जा रहा है, वो बड़ी हैरानकुन है, बल्कि शाला रज़ा साहब ने साहिबा ने शायद ज़िक्र भी किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो भाई इस बच्ची को आज अदालत में पेश किया गया, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में। बच्ची का बयान कलम बंद हुआ, वालिदा और वालिदैन खुशी से निहाल थे। ज़ाहिर है अपनी बच्ची को इतने अरसे के बाद, 2-3 महीने के बाद हम समझ सकते हैं। मैं बार-बार कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि वो इंसान ही नहीं है जिसके दिल में दूसरों का दर्द नहीं है। वो ऐसा इंसान ही नहीं है, वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है जिसके दिल में इंसानियत का दर्द नहीं है। बहरहाल, और वो इंसान ही नहीं है जो मज़लूम के साथ खड़ा नहीं होता। ज़ालिम का साथ देने वाला कभी भी ज़ाहिर है वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। बहरहाल जी, वालिदैन मज़लूम, इंतहाई गरीब, रिक्शा चलाने वाला, और अपना रिक्शा बेच दिया बच्ची के चक्कर में। तो जब उन्होंने अपनी बच्ची को देखा बहुत खुश हुए। वालिद को बच्ची आपने वीडियो में देख लिया, कह रही है, वालिद उसको कह रहा है कि जब हमसे मिले ही नहीं 2 महीने, हम कैसे तस्लीम कर लें। ये वाला मामला चल रहा है। बहरहाल जी, बच्ची को बाकायदा तौर पे जो है पेश किया गया अदालत में, और बयान कलमबंद हुआ। और वालिदा का ये मौक़िफ़ था कि मेरी बेटी, और वकील ने अंदर यही कहा, वही वाला मौक़िफ़ जो जिब्रान नासिर साहब जो है वो अल्ताफ़ साहब इनके वकील हैं। और वो जिब्राना साहब जो मौक़िफ़ अपनाया करते थे अदालतों में, आज तक जो अपनाते हैं, और जो हकीकत है कि जी बच्ची जो है उसकी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वालिदैन का निकाह हुआ, ये उनकी बर्थ सर्टिफ़िकेट है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है। सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जिनको पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है कि जी ये बच्ची 13 साल की है, इसको बहलाया-फुसलाया गया है, इसकी उम्र ही नहीं है, इसका फ़ेक निकाह किया गया है, इसके निकाह के ऊपर तारीख़ 17 है, सॉरी उम्र 17 है, इसका जो बयान है उसके ऊपर उम्र 18 है, इनके बयानात आपस में नहीं मिलते, बच्ची जो है उनके उसमें है, ज़ेर असर है, बच्ची को तशद्दुद किया जाता रहा, माँ का ये इल्ज़ाम है कि बच्ची को नशा आवर चीज़ें पिलाई जाती, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो अदालत में बताई गईं। बिल आखिर अदालत ने वकील के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए तफ्तीशी अफ़सर को ये आर्डर किया, जो कि बड़ी खुश आइंद बात है। इसको कहूँगा बहुत खुश आइंद बात है। होना चाहिए कि जी आप ये करें कि एक तो बच्ची वापस नहीं जाएगी पिंडी, बच्ची रहेगी चाइल्ड प्रोटेक्शन में, और उसी चाइल्ड प्रोटेक्शन में जिसमें ज़ारा रही है। उसके बाद बच्ची का करवाया जाएगा मेडिकल, और मेडिकल बोर्ड बनाएँ और बच्ची का करवाएँ मेडिकल। मेडिकल का रिज़ल्ट लेके आएँ कि बच्ची की उम्र क्या है। बहरहाल उसके बाद जो है बच्ची बाहर आई, रो रही थी, कह रही थी जी कि मैंने जो ख़ावंद के साथ जाना है, मैंने यहाँ नहीं रहना, और ये वो जो बच्ची बातें कर सकती थी ज़ाहिर है उसने की। लेकिन अदालत ने ये जो है आर्डर दिया है, जो कि उम्मे हबीबा के वालिदैन के लिए, अली काज़मी के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो ये समझता हूँ, किसी की ज़ाती ज़िंदगी में पहले दिन से इस चीज़ का मतलब कोई कुछ भी हो सकता है, मैं भी कुछ हो सकता हूँ ज़ाहिर है, मेरे हवाले से भी कोई कोई बात कर सकता है शायद भी, मतलब हर मैं अपना इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है हर शख़्स की अपनी एक ज़ाती ज़िंदगी होती है, वो कौन है, क्या है, वो डिपेंड करता है। लेकिन अली काज़मी को मैं इस उसके ऊपर ये वाला एंगल है ना कि जी बेटी के लिए खड़े होना, नहीं जाने देना, जिन लोगों ने उठाया उनको नहीं छोड़ना, उनके खिलाफ डट जाना और आज तक खड़े रहना, इस चीज़ ने ना बहुत सारे वालिदैन को हिम्मत दी है। यकीन करें, ये इसके उम्मे हबीबा की वालिदा से मेरी वालिदैन से बात हुई। वो जो एक और बच्ची हुई थी उसका मुझे नाम उम्मे हानी, उसके वालिद से आप पूछ लें। और भी बहुत सारे जितने भी बच्चे, तो वो कहते हैं कि यार हमने अली काज़मी को देखा तो हमें लगा कि यार अगर इसकी बच्ची वापस आ सकती है तो फिर हम भी अपनी बच्ची को वापस, तो हम फिर ये करते हैं कि हम जाते हैं कोर्ट्स में। आपको याद है, आपको पता है बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जो इस चीज़ को इसलिए छोड़ देते हैं कि यार अब कौन जाए और क्या करे, और छोड़ो बस अब हो गया, तो अगर उनसे सुलह करनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर होता क्या है, जो इससे अगला मामला होता है ना वो बड़ा अफ़सोसनाक होता है, अल्लाह माफ़ करे। 90% तकरीबन इस तरह की शादियाँ जो है वो नाकाम होती हैं, और उस बच्ची को फिर पूछने वाला कोई नहीं होता। वालिदैन से वो ऑलरेडी ताल्लुक़ तोड़ चुकी होती है। ये जो ज़ालिम होते हैं, इसको मारते भी हैं, पता नहीं फिर उसको कहीं आगे पीछे भी कर देते हैं, कोई पता नहीं चलता। फिर कहीं बेच भी देते हैं, और आपने वीडियोज़ भी ऐसी बहुत सारी देखी। तो बहरहाल जी, उम्मे हबीबा का मामला भी इंशाअल्लाह कोर्ट्स में जा रहा है, और उम्मे हबीबा के वालिदैन भी, उनकी बच्ची कराची पहुँच गई है शेल्टर होम, और इंशाअल्लाह कोशिश है, अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह अदालतों में जो ये मामला है, उम्मीद यही है, लग यही रहा है कि वो वालिदैन को भी ज़रूर मिलेगी, वालिदैन की मुलाकातें भी होंगी, और बच्ची आज अगर ये कह रही है कि मैंने वालिदैन के साथ नहीं जाना, इंशाअल्लाह कुछ अरसे के बाद वो ये ज़रूर कहेगी कि मैंने वालिदैन के पास ही रहना है, और मैंने जो किया था वो मुझसे गलती हुई थी, मैं किसी की बातों में आ गई थी, और मैं जो है अपनी ज़िंदगी वो उसी तरह कंटिन्यू करेगी जैसे बाकी बच्चियाँ करती हैं।
दुआ है अल्लाह ताला मेरी, आपकी, हम सब की बेटियों को जो है वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह उनकी इज़्ज़तें महफूज रखे। अल्लाह ताला तमाम वालिदैन की इज़्ज़तें महफूज रखे। अल्लाह किसी की बच्ची को अल्लाह इज़्ज़त के साथ रखे। हर किसी की बच्ची को पसंद की शादी करना कोई बुरी बात नहीं, होनी चाहिए। मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है, उसके तहत करें, वालिदैन को कहें और बिल्कुल उसको साथ लेके, अगर वालिदैन नहीं भी मानते फिर भी आप कोशिश करें कि वो मान जाएँ, होनी चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये तरीका नहीं है। इस तरीके पे इख्तलाफ है। ये ऐसा तरीका नहीं है कि आप किसी की बेटी जो 13-14 साल की है, एक तो वो कम उम्र है, उसको आप बहलाएँ-फुसलाएँ, उसको फिर साथ ले जाएँ और निकाह करके कहें लो जी आ गए असीं फिर कुछ कर सकने हो तो कर लो। दिस इज़ नॉट द वे और किसी तरह भी एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। बहरहाल इंशाअल्लाह उम्मे हबीबा के केस के हवाले से और केसेस के और मग़विया वाले केस, ज़ारा वाले केस में भी ये डेवलपमेंट आने वाली है इंशाअल्लाह। मेरी अभी थोड़ी देर पहले बल्कि कोशिश करूँगा वीडियो करूँगा। अली काज़मी साहब से बात हुई है, तो इंशाअल्लाह उस पे भी बात होगी और ये बात होती रहेगी इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर और इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, अपनी दुआ में याद रखा करें। और आपने अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज स्पेशली मैं कहता होता हूँ, मेरा फेसबुक पेज बनाया है, उसके ऊपर वीडियोज़ सारी डालते हैं। बहुत सारे लोगों की एक्सेस फेसबुक पे होती है, तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, वीडियोज़ मेरी शेयर किया करें जी। और अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखा करें। आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर किसी को, मुझे भी है। और फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।